کیا تھا، اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار ہی کے طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کارروائیوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کے دلیلیں پیش کر دے جب بھی یہ کبھی آپ کے قبلے کو قبول نہ کریں، دیکھو جو باقی جو قوم ہے، جو یہودی ہو یا نصرانی ہو گئے یا جو کافر لوگ گئے، اگر ان لوگوں کو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرو بولتے تو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ ان اہل کتاب مطلب یہ سب آ جاتے ہیں جو سامنے تمام دنیا بھر کے دلیلیں پیش کر دے جب بھی یہ کبھی آپ کے قبلے کو قبول نہ کریں، اور آپ بھی ان کے قبلے کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، ہم کیوں ان کا بات کو مانیں؟ ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، پھر موقفت کے کیا صورت؟ اور ان کا کوئی فریقہ بھی دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو قبلے کو قبول نہیں کرتے، وہ اپنے آپ میں جھگڑے میں ہیں، تو ان سے وہ اپنے سے مٹا لینے دو، ان کو چھوڑ دو، جیسا کہ قرآن میں بتایا قل یا الکافرون، جو 30واں پارے میں لکھا ہے۔ اور اگر آپ ان کے نفسانی خواہشات کا اختیار کر لیں، وہ بھی آپ کے پاس علم وہی آئے، یعنی علم آنے کے بعد بھی اللہ کے طرف سے آپ ان کے خیالات کے نفسانی خیالات کا اختیار کر لیں، اور وہ بھی آپ کے پاس علم وہی آئے پیچھے، تو یقین آپ نعوذ باللہ اللہم اغفر لی ظالموں میں شمار ہونے لگے۔ دیکھو اتنا علم آنے کے بعد، وہی آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد بھی اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر اور ان لوگوں کی طور طریقوں کو آزمائیں گے تو یقیناً ظالموں میں شمار ہوں گے۔ تو ظالموں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریات انجیل دی ہے، وہ لوگ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ توریات میں، انجیل میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بارے میں ذکر ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، وہ ان کے اوپر قرآن نازل ہونے والے ہیں، ایسا ان کے اوپر ایمان لانا، یہ ان کو معلوم ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ چیز کو دبا دیتے ہیں، وہ اس کو پھیلاتے نہیں، کچھ باتوں کو چھپاتے ہیں، کچھ باتوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور بعض ان میں سے امر واقع کو باوجود یہ خوب جانتے ہیں مگر اخفا کرتے ہیں، دیکھو اس کو دباتے ہیں، چھپاتے ہیں، جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، پورے امت کا یعنی قیامت تک کے لیے پیغمبر وہی رہیں گے، قیامت تک کے لیے ایک قرآن رہے گا، جو جاننے کے باوجود بھی اخفا کرتے ہیں، حالانکہ امر واقع منجانا واللہ ثابت ہو چکا ہے، یہ اللہ کے طرف سے حکم ثابت ہو چکا ہے۔ ہم انسان کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم کو ماننا ہی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طور طریقوں آزمانا ہی، سو غلطی ہو گیا تو معافی مانگنا، ہرگز شک و شب لانے والوں میں شمار نہ ہونا، یعنی یہ قرآن کے بارے میں، اللہ کے حکم کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں کوئی شک اور شب لانے والوں میں شمار نہ ہونا، بالکل اسلام پر اپنا جان دینا۔ یہاں تک دوسرے پارے کا پہلا رکوع پورا ہو چکا، اس کے بعد میں دوسرا رکوع، اور ہر شخص مذہب کے واسطے یہ کہ قبلہ رہا ہے۔ دیکھو بہت سے مذہب ہے، آج انڈیا میں ہو اور باقی ملکوں میں بھی ہو، ہر ایک قسم کے لوگ ہر طریقے سے اپنے معبودوں کو عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ حق بات کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو علم کو سیکھنا چاہیے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، تم سب کو حاضر کر دیں گے۔ واسطے ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں من کرتا رہا ہے، سو تم نیک کاموں میں تقاؤ پور کرو، نیک اچھے کام کرو، خواہ تم کہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سب کو حاضر کر دیں گے، یعنی اچھے کام کرو۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ قرآن میں سب کچھ بالکل انسانیت کے ناطے سب کچھ بتا دیا ہے، انسانیت کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن کافی ہے۔
تم سب کو اللہ تعالیٰ حاضر کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر امر پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جس جگہ سے بھی کہیں سفر میں آپ باہر جاوے تو بھی اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرم یعنی کعبہ کی طرف رکھا کیجیے۔ جیسا کہ انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے، پیدل ہو، گاڑی میں ہو، ٹرین سے ہو، ہوائی جہاز میں سے بھی ہو، یا آفس میں کام کرنے کے کرتا بھی ہو، کہیں بھی ہو، اگر وہ سفر کرتا ہے تو وہ اپنا آج کل کیا کیا کہ ہاتھ کا گھڑی میں بھی قبلے کا نشانی دکھا دیتا ہے، اور سیل میں بھی قبلے کا طریقہ دکھا دیتا ہے، اور ہم آپ کو دشا دیکھ کے بھی قبلے کو معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کہیں بھی سفر کرتے ہو تو نماز کا وقت ہو گیا تو آپ لوگ اپنا چہرے کو مسجد حرم یعنی کعبہ کی طرف رکھا کیجیے۔ اگر آپ ہوائی جہاز میں ہیں کیسا کرو گے؟ اس ٹائم پر ہوائی جہاز تو کدھر کدھر گھومتے جائے گا، لیکن جب وقت ہو گیا نماز کا، تم نے رکعت بھرنا ہے، تو اس ٹائم پر تمہارا چہرے کو مسجد حرم یعنی کعبہ کی طرف رکھا کرو۔ اس کے بعد میں نیت بن لو، انی وجہت وجہ اللہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اس کے بعد میں اپنے نماز ادا کرو۔ اگر بعد میں وہ ہوائی جہاز کدھر بھی گھومے، کہیں بھی گھومے، تم تو اپنا چہرے کو تو کعبہ کی طرف کیا۔ اللہ جاننے والا بہتر ہے، اس بات کو جان لو۔ یعنی کہیں بھی تم سفر میں ہو، نماز میں اپنا چہرے کو کعبہ کی طرف رکھا کیجیے۔ اور یہ حکم عام قبلہ کا بالکل حق ہے، اور من جناب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے اصلاح بے خبر نہیں ہے۔ دیکھو، تم اپنا دل سے بولتا ہے کہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، لیکن ہوائی جہاز ادھر گئی، ٹرین ادھر کو پھرا، کوئی بات نہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، لیکن تمہارا دل میں کیا ہے؟ میں نے قبلے کی طرف منہ کر کے نیت باندھ دیا۔ اس کے بعد میں کدھر بھی جائے، ٹرین جائے یا ہوائی جہاز جائے یا سمندر میں جہاز گھومے، اسے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ اللہ تمہارا دل کی بات کو جانتا ہے۔ یہ بات کو جاننا ہے، اتنا بھروسہ اللہ کے اوپر رکھنا ہے انسان کو۔ اور مقرر کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ سے بھی سفر میں باہر جاؤ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھے۔ اللہ کی طرف سے بالکل یہ حکم ہے، مقرر ہے۔ اور تم لوگ جہاں کہیں موجود ہو، اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھا کرو۔ دیکھو، کہیں بھی بازار میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تب بھی اپنے چہرے کو قبلے کی طرف رکھ کے بیٹھا کرو، اور بات چیت بھی اللہ اور رسول کی کیا کرو۔ دنیا کی باتوں میں اپنا وقت کو مت گزارو، تاکہ ان مخالف لوگوں کو تمہارے مقابل میں گفتگو کی مجال نہ رہے۔ جو باقی قوم ہیں دنیا میں تمہارے ساتھ بشر کرنے والے، ان کو تمہارے بارے میں گفتگو کی مجال نہ رہے، مگر ان میں جو بالکل ہی بے انصاف ہے، تو ایسے لوگوں سے اصلاح اندیشہ نہ کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی ایسے انسانوں سے مت ڈرو، صرف اللہ سے ڈرتے رہو، اور تاکہ تم پر جو کچھ میرا انعام ہے اس کا تکمیل کر دوں، اور تاکہ دنیا میں تم راہ حق پر رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اور تاکہ تم پر جو کچھ میرا انعام ہے اس کی تکمیل کر دوں، اور تاکہ دنیا میں تم راہ حق پر رہو، یعنی حق بات پر، حق زندگی، حق اسلام پر رہو۔ جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، تم ہی میں سے جو ہمارے آیات احکام پڑھ کر تم کو سناتے۔ دیکھو، پڑھ کر تم کو سناتے کون؟ پیغمبر، اللہ کے حکم۔ آج دنیا میں پیغمبر نہیں، تو ہم کیا کرنا ہے؟ ہم اس قرآن کو پڑھ کر سنانا ہے، مانے نہ مانے وہ ان کی مرضی ہے۔ حق بات کو ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ قرآن پڑھنا بولا تو آج مسلمان بھی ڈرتا ہے، تو قرآن میں دیکھو یہی بولتا ہے، قرآن پڑھ کر سناؤ، وہ حکام پڑھ کر تم کو سناتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سناتے ہیں، اور جہالت سے تمہارے صفائی کرتے رہتے۔ جہالت
यानी जाहिलाना ज़िंदगी से निकाल कर इंसानियत की तरफ तुमको बुलाते हैं और तुमको किताब इलाही और फ़हीम की बातें बतलाते रहते हैं। यानी अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के किताब, अल्लाह के अहकाम को तुमको बतलाते हैं। ये बीच में क्या है, क्या पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिब्रील के तरफ से, जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से पैगम्बर की तरफ वही लाते हैं, पैगम्बर हमको बतला देते हैं। ये इसका मानी है। और तुमको किताब इलाही और फ़हीम की बातें बतलाते रहते हैं। इसके बीच में दबी हुई मानी को समझना चाहिए। कब समझोगे? इल्म को सीखोगे, बार बार पढ़ते रहोगे तो अल्लाह ताला इल्म देगा इंशाअल्लाह। और तुमको ऐसी मुफीद बातें तालीम करते रहते हैं जिनकी तुमको खबर भी ना थी। देखो अभी अभी मैंने बताया था, अल्लाह ताला इल्म देते हैं। तो इन नियामतों पर मुझको याद करो, बोलते हैं अल्लाह ताला, ऐसे ऐसे नियामतों पर अल्लाह को याद करो, चलते फिरते उड़ते बैठते हमेशा अल्लाह की याद में मशगूल हो। तुमको इनायत से याद रखूँगा अल्लाह ताला। तुम अल्लाह को याद रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा याद रखेगा। और मेरी नियामत की शुक्रगुजारी करो। जो भी नियामत तुमको मिला है उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र करो। जो आदमी शुक्र करता है अपने लिए शुक्रगुजारी करता है। जो आदमी नाशुक्री करता है अल्लाह को कोई नुकसान नहीं। और मेरी नाफरमानी मत करो, मतलब अल्लाह की नाफरमानी मत करो। ईमान वालो, देखो कितने अच्छे अल्फाज से अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को, हम पूरा जहान वालों को बुलाए। देखो ईमान वालो, सब्र और नमाज से सहारा हासिल करो। जब भी मुसीबत आता है तुम नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाओ और सब्र करो। ये हिम्मत के कामों में से है। बिलाशक हक ताला सब्र करने वालों के साथ रहते हैं। सब्र रहना, जल्दीबाजी नहीं करना, क्योंकि जल्दीबाजी में कोई गलत हो सकता है। सब्र करने से उसका नतीजा कुछ और हो सकता है। अल्लाह ताला इसलिए बोलते हैं तुम नमाज पढ़ो और सब्र करो। ये सूरह लुकमान में भी लिखा है कि सब्र करना बड़ी हिम्मत के कामों में से है। और नमाज पढ़ने वालों के साथ तो बदरजा औला, नमाज अल्लाह ताला बिलाशक हक ताला सब्र करने वालों के साथ रहते हैं। और नमाज पढ़ने वालों के साथ तो बदरजा औला और अच्छे तरीके से रहते हैं नमाज पढ़ने वाले, क्योंकि नमाज पढ़ने वाला हमेशा पाक साफ रहता है। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उनकी नस्बत यूँ मत कहो कि वह मामूली मुर्दों की तरह मुर्दे है, बल्कि वह तो एक मुमताज़ हयात के साथ जिंदा है। लेकिन तुम उनका हवा से इस हयात का आवारा नहीं कर सकते। यानी अल्लाह के रास्ते में दीन के लिए जो शहीद हुआ, उल्टे सुल्टे कामों के लिए नहीं, दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए जो शहीद हुआ उसको मुर्दा का मत ख्याल करो। वो जिंदे है, एक हयात में जिंदा है, उसको तुम अदारा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ भी पहुंचा देता है जो शहीद होते हैं। और देखो हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे किसी कदर खौफ से और फाक से और माल और जान और फलों की कमी से। और आप ऐसे साबरीन को बशारत सुना दीजिए जिनकी आदत है कि उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो वह कहते हैं कि हम तो माल और औलाद हकीकतन अल्लाह ताला ही की मुल्क है और हम सब दुनिया से अल्लाह ताला के पास जाने वाले हैं। देखो अल्लाह ताला पहले ही बता दिया, जो तुमको मिलता है उस पर घमंड मत करना, जो तुमसे जाता है उस पर रोना नहीं। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह लेता है देता है। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? नमाज पढ़ना, सब्र करना, ईमान एक अल्लाह पर रखना और कुरान करीम का तालीम और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीक़ा को आजमाना, ताकि सुन्नतों को ज़िंदा करोगे, आगे बढ़कर क़यामत तक इस्लाम कायम रहेगा। इस बात को हर मुसलमान जानना चाहिए। उन लोगों पर जुदा जुदा खास रहमतें भी उनके परवरदिगार की तरफ से होंगी और सब पर बरासतराक आम रहमत भी होगी। और यही लोग है जिनके हकीकतन हाल तक रसाई होगी। तहकीकतन सफ़ा और मरवा, यह हज के बारे में बताया। यहाँ पर सफ़ा और मरवा क्या है? ये दो पहाड़ा है।
ये मंजर यादगारी दीन खुदाबंदी है। कौन सा? सफ़ा और मरवा। जो भी हज को जाता है सफ़ा और मरवा का सही करता है, 7 चक्कर लगा देता है। उसका किस्सा और भी है कि जब फ़ज़ाइल आमाल में फ़ज़ाइल हज पढ़ोगे तो हज के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। बैठे बैठे इल्म नहीं आएगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कि जुमे में जाके मैं एक 25 मिनट या आधा घंटा बयान सुनूंगा तो मेरे को इल्म आ जाएगा, नहीं। आप लोगों को क्या करना है? फ़ज़ाइल आमाल का फ़ज़ाइल हज पढ़ने से उसके बारे में मालूम हो जाएगा। ये सफ़ा और मरवा क्या है? मंजाना बल्ला यादगारी दीनी खुदाबंदी है। ये 2 पहाड़ा। तो जो शख्स हज करे बैतुल्लाह का या उसका उम्रा करे उस पर ज़रा भी गुनाह नहीं, यानी उम्रा करना, हज करना। हज उम्र में 1 मरतबा फ़र्ज़ है, अगर ज़्यादा कर देता है तो अल्लाह उसका सवाब उसको देंगे, लेकिन वो पैसे वालों के लिए है। उसके बारे में बहुत से मसले हैं, पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगा, हदीस से भी या कुरान से भी। और उस पर ज़रा भी गुनाह नहीं उन दोनों के दरमियान आमद रफत करने में, जिसका नाम सया है, मतलब सही करना। सफ़ा और मरवा का सही करना कि मतलब जहाँ पर दौड़ना, जहाँ पर तेज़ी से चलना, जैसे घबरा के चलना। जिस तरीके से अम्मा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ ने जो सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाए थे, किस हैरान परेशान में थे, उस हैरान परेशान को अपना दिल दिमाग से ले आके सफ़ा मरवा का सही करना। आज हम क्या करते हैं? वो एक ये बनाते हैं, बस इस तरीके से हमने हज करना बस, लेकिन दिल में उसका दर्द होना चाहिए। कहने का मतलब भी समझ गए होंगे, दिल में उसका दर्द महसूस होना चाहिए। एक बच्चे को छोड़ के एक माँ कितना दूर कैसा जाती है और कितना दिल से तड़पती है, फिर दोबारा कैसा दौड़ के आती है, फिर दोबारा पानी के लिए तलाश करती है, फिर खाना पानी के लिए तलाश करती है। इस बात का ख्याल करना, जैसा सभी आदमी हज करके आ गया, हम भी हज करके आ गए, लेकिन मतलब मानी को समझना, दिल से दर्द को महसूस करना। और जो शख्स खुशी से कोई अमर खैर करे तो हक ताला उसका बड़ी कदरदानी करते हैं और उसकी नीयत को खूब जानते हैं। देखो मैं अभी बोला, उसका नीयत को अल्लाह ताला खूब जानते हैं। जो लोग अखफा करते हैं यानी छुपाते हैं उन मज़ामीन का जिनको हमने नाजिल किया है, यानी अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया है उसी तरीके से बाकी दिगरे किताबें नाजिल किया है, उसमें कुछ बातों को छुपाते हैं, कुछ बातों को जाहिर करते हैं। अपनी जाति में वजह है, हमने नाजिल किया है जो कि अपने जात में वजह है, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया है, वो पक्का बता देना। और दूसरों को वहाँ हावी है बात इसके कि हम उनको किताब इलाही तौरात इंजील में आम लोगों पर जाहिर कर चुके हैं, मतलब आम लोगों सब के ऊपर ये हुक्म जाहिर किए थे किताबों के जरिए से। उसको उन लोगों ने क्या किया, कुछ बातों को छुपाते हैं, कुछ बातों को जाहिर कर देते। यानी इंजील वालों को भी मालूम है और तौरात वालों को भी मालूम है कुरान नाजिल होगा, हम सब मुसलमान होना पड़ेगा, क्योंकि क़यामत तक के लिए हम कुरान के ऊपर हमें ईमान लाना है। तौरात का तो हुक्म मंसूब हो गया, इंजील का हुक्म तो मंसूब हो गया, अभी क्या है, कुरान है। जिस बात को जानते फिर भी अखफा करते हैं। जिसको कुरान का मानी किसको चाहिए, हिंदुस्तान को चाहिए। बाकी जहाँ पर अरब कंट्री नहीं, जिसको अरब नहीं जानता है उसको कुरान का मानी है। जैसे अरब कंट्री में ये क्या यहूदी भी है, नसरानी भी है, उनका भी कुरान का मानी की कोई ज़रूरत नहीं, वो अरबी मानी को जानते हैं। इस जानने के बावजूद भी वो अखफा करते हैं। कहने का मतलब कि कुरान को आम करो और कुरान के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी बसर करो, इसी इस्लाम के ऊपर ही अपना जान दो। ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला भी लानत फरमाते हैं और दूसरे बेहतरे लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं, यानी इस्लाम को दबाना चाहते हैं और इंजील में और तौरात में जो हक बात अल्लाह ने बताया उसको भी दबाना चाहते हैं। अल्लाह ताला उन पर लानत भेजते हैं।
लानत फरमाते हैं, और दूसरे 72 लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। मगर जो लोग तौबा कर ले, देखो इतना गलती होने के बावजूद भी अल्लाह बोलता है तौबा का दरवाज़ा खुला है, तुम तौबा करो मैं माफ़ कर दूंगा, अल्लाह माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला बोलते हैं इतना भी गलती करोगे तब भी तुम्हारा गलती को मैं माफ़ करूंगा, जबकि तुम सच्चे दिल से अल्लाह के सामने तौबा कर लो। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, और इस्लाह कर ले, और इन मज़ामीन को जाहिर कर दे, जो छुपाए चीज़ को जाहिर कर दे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। तो ऐसे लोगों पर मैं मुतवज्जा हो जाता हूँ, जैसा मैं क्या करना है अल्लाह ताला, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला मुतवज्जा हो जाता है। और मेरी तो बकसर आदत है तौबा कबूल कर लेना और मेहरबानी फरमाना। देखो अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, वअना तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला का बकसरत आदत है तौबा कबूल कर लेना और मेहरबानी फरमाना। अलबत्ता जो लोग उनमें से इस्लाम ना लावे और इसी हालत गैर इस्लाम पर मर जावे, ऐसे लोगों पर वह लानत मज़कूरा अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और आदमियों के भी सब की ऐसी तौर पर बरसा करेगी कि वह हमेशा हमेशा इसी लानत में रहेंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। उनसे अज़ाब हल्का ना होने पाएगा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। और ना दाखिल होने के कबल उनको मोहल्लत दी जाएगी, यानी जहन्नम में धकल देंगे फरिश्ते, और ना दाखिल होने के कबल उनको मोहल्लत दी जाएगी। और ये देखो यहाँ पर फ़ायदा लिखा है 2, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि यह फ़ायदे के पीछे क्या मानी दबावा है, ठीक है। और ऐसे माबूद जो तुम सब के माबूद बनने के मुस्तक है, वह तो एक ही माबूद हकीकी है, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, इसका सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही रहमान है और वही रहीम है। बिलाशक आसमानों का और ज़मीन के बनाने में और एक के बाद दिगरे रात और दिन आने में, जहाज़ों में जो कि समुंदर में चलते हैं, आदमियों के नफ़ा की चीज़ें और इस बात लेकर और बारिश के पानी में से जिसको अल्लाह ताला ने आसमान से बरसाया, फिर इससे ज़मीन को तरोताज़ा किया, इसके खुशक हुए पीछे सूख जाने के बाद पीछे, और हर किस्म के हैवानात इसमें फैला दिए, और हवाओं के बदलने में और अबर में जो ज़मीन और आसमान के दरमियान मकीर और माल्लक रहता है, यानी अबर का मान क्या है, आसमान और हवा। दलाइल तौहीद के मौजूद है, तौहीद का मान क्या, एक अल्लाह के, ये एक अल्लाह ने बना दिया, इसके दलाइल मौजूद है उन लोगों के लिए जो अकल सलीम रखते हैं, जो अकल सलीम रख के सोचते हैं पढ़ते हैं, उनके लिए दलील काफ़ी है। और एक आदमी वह भी है जो अलावा खुदा ताला के औरों को भी शरीक खुदाए करार देते हैं, उनसे ऐसे मोहब्बत रखते हैं जैसे मोहब्बत अल्लाह से रखना ज़रूरी है। और जो मोमिन है उनको अल्लाह ताला के साथ कोई मोहब्बत है। यहाँ पर भी फ़ायदा लिखा है, ये बाजू में पढ़ने से उसका मैं आपको उंगली से दिखा रहा हूँ कि ये मेरा बातों पर ही नहीं रहना, मेरे बयान पर ही नहीं रहना, आप भी कुरान लेके पढ़ना। जैसा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इंगुल डाल के फ़ायदा, ये बाजू में लिखा हुआ है दबी हुई फ़ायदा, उसको पढ़ने से और भी इल्म हासिल होगा। और क्या खूब होता अगर ये जालिम मुश्रिकीन जब दुनिया में किसी मुसीबत को देखते तो उसके वक़ा में गौर करके समझ लिया करते कि सब कुव्वत हक ताला ही के है, यानी को सब कुव्वत अच्छा बुरा सब कुछ अल्लाह ताला के तरफ ही से है। और ये समझ लिया करते कि अल्लाह ताला का अजाब आखिरत में और भी सख्त होगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। जबकि वह लोग जिनके कहने पर दूसरे चलते थे उन लोगों से साफ अलग हो जाएंगे जो उनके कहने पर चलते थे। दुनिया में तो आओ हमारे मज़हब के, आओ हमारे मज़हब के, ये सब ऐसा ही दुनिया में बुलाते, लेकिन हक बात को हम पहचानना है। ये कल क़यामत के दिन तुमसे अलग हो जाएंगे। हक बात क्या है, कुरान है, हक क्या है, एक अल्लाह है, और सब अजाब का मुशाहदा कर लेंगे, तुमसे अलग हो जाएंगे। जो बुलाने से काफिर हो गया, वो बुलाने की वजह से
ये उसके बुलाने पर काफिर होने की वजह से, दोनों को भी और शैतान को भी, क्योंकि उसने तुमको गुमराह कर दिया। गुमराह करने की वजह से, गुमराह होने की वजह से दोनों के भी जहन्नम और बाहम, इनमें जो ताल्लुकात थे उस वक्त सब कता हो जाएंगे। दुनिया में जो ताल्लुकात है ये खून और दूध का रिश्ता है, और कल क़यामत के दिन ईमान का रिश्ता है। जैसा ये हमसे इस वक्त साफ अलग हो बैठे हैं, अल्लाह ताला यूं ही उनके बदआमालियों को खाली अरमान करके उनको दिखला देंगे। दुनिया में बोलते हैं मैं हमें अल्लाह को याद करते हैं, हमें अच्छे कामें करते हैं, तो क्या करते क्या नहीं करते सब कुछ अल्लाह ताला उनको कल क़यामत के दिन उनको दिखा देगा, और उनको दोज़ख से निकालना भी नसीब ना होगी। जो नाफरमान है उन लोगों के लिए अल्लाह अगर दोज़ख से उनको निकालना चाहता है तो और बात है, क्योंकि अल्लाह ताला रहीम है, रहमान है। किसको माफ़ कर देता है उसका मर्जी है, किसको सज़ा देता है उसका मर्जी है। हमारा काम है या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हमारे आला औलाद को माफ़ फरमा, ऐसा ही दुआ मांगना हमारा काम है। अल्लाह की मर्जी है, जिसको दोज़ख देना, जिसको जन्नत देना, हम उसमें कोई खलल नहीं डाल सकते। आए लोगों, देखो सबको बोला यहाँ पर, ये आयत में देखो उंगली डाल के बोला, सिर्फ मुसलमान को नहीं बोला। आए लोगों, जितने लोग दुनिया में उन सब के लिए कुरान बोलता है। आए लोगों, जो चीज़ें ज़मीन में मौजूद है उनमें से शरिया हलाल पाक चीज़ों को खाओ, बरतो, और शैतान के कदम बकदम मत चलो। जैसे शैतान बोला कुरान में, क्या क्या पहला इब्लिश करके उसका बारे में नाम आया, उसके बाद में शैतान उसका नाम दूसरा लगा दिया। ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान के कदम बकदम मत चलो, क्योंकि तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर वाक़ा हो तुम्हारा सरिया दुश्मन है। देखो अभी मैं बता दिया, वह तुमको उन्हीं बातों का तालीम करेगा जो शरअन बुरी और गंदी है। ऐसे ऐसे गंदे बातों का, ऐसे शरअन बुरी बातों का और शिरक का तुमको तालीम देगा, ताकि तुमको अल्लाह से जुदा करे। कैसा जुदा किया? जैसा तुम्हारे दादा दादी को अल्लाह से जुदा करके जन्नत से बाहर निकाल दिया, और भी कैसा निकाला? नंगा करके, और तुमको भी जन्नत में जाने से लिए रोके रहा है। इस बात को तुम जानना चाहिए। ये जानने के लिए कैसा मालूम पड़ेगा? तुमको कुरान पढ़ने को पड़ेगा, ये आयतों को पढ़ना पड़ेगा। देखो पेजी नंबर भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये भी तालीम करेगा अल्लाह ताला के जिम्मा वह बातें लगाओ जिसका तुमको संद भी नहीं रखते। और जब कोई उन मुशरिक लोगों में से कहता है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म भेजा है उस पर चलो, तो कहते हैं कि नहीं, बल्कि हम तो उसी तरीक़ा पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है। जैसा मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा जिस तरीके से ये दीन पर चले, मैं भी उन दीन पर चलूँगा। तो आपको दुनिया में चल फिरो, देखो हक क्या है, बातिल क्या है, जो गलत काम करने वाले को क्या सज़ा हो गया, जो ईमान लाए उनको किस तरीके से अल्लाह ने बचा लिया। इस बात को जानने के लिए तुमको सफ़र भी करना पड़ेगा, इल्म को भी हासिल करना पड़ेगा। क्या अगर उनके बाप दादा दीन की ना कुछ समझ रखते हो, यानी दीन के बारे में ना कुछ समझ रखते, अपने मनमाने ख्यालात में शैतान के बहका में आ गए होंगे, तो क्या तुम भी उसके बहकाने में आओगे? इसलिए बोलते हैं कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसके कदम बकदम मत चलो। तुम किताब को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, समझो, और ना किसी आसमानी किताब की हिदायत रखते हो, यानी वो इसलिए बुजुर्ग आसमानी किताब क्या? अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब। या देखो यहाँ पर फ़ायदा एक लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर फ़ायदा एक लिखा है, इसका मानी पीछे दबा हुआ है, या जगह नहीं होने की वजह से ये बाजू में लिखते हैं। उनको भी पढ़ने से और भी मालूम पड़ जाएगा। और उन काफिरों की कैफियत नाफहमी में है। इस जानवर की कैफियत की मिसाल है, अल्लाह ताला मिसाल बता दे, जानवर की भी मिसाल बता दे। जैसा इंसान को अशरफुल मखलूक़ात करके नवाजा, लेकिन इंसान को अकल कौवे से दिया, और इनकी मिसाल एक जानवरों से भी बता देते हैं। कैफियत की मिसाल है जानवरों की। एक शख्स है वह ऐसे जानवर के पीछे चिल्ला रहा है जो
बजाय बुलाने और पुकारने की कोई बात नहीं सुनता। जैसा आजकल हम देखो जानवर को लकड़ी लेके मारते चले जाते, मुंह से कितने गालियां देते चले जाते। क्या वो जानवर को तुम्हारी ये गाली सुननी आती है? वो समझता है और तुम पीटते हैं, उसको मार लगता है। वो इस जानवर की मिसाल बता देता है। इस तरह ये कफ़ार बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, जो समझते कुछ नहीं। देखो कुरान में सबसे पहला कान के बारे में आता है, उसके बारे में गले के बारे में आता है, बहरे हैं, गूंगे हैं, उसके बाद में आंख के बारे में आता है, अंधे हैं। देखो अंधा आदमी भी रोड पार कर सकता है और बहरा आदमी भी रोड पार कर सकता है, लेकिन बहरा आदमी रोड पार नहीं कर सकता है, अंधा आदमी टाइप भी करता है। देखी हुई बात है। आई ईमान वालो, जो शरिया रूह से पाक चीज़ें हमने तुमको मरहमत फरमाई है, उनमें से जो चाहो खाओ और बरतो और हक ताला के शुक्रगुजारी करो अगर तुम खास उनके साथ गुलामी का ताल्लुक़ रखते हो, यानी हमेशा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखते हो तो अल्लाह की दी हुई पाक चीज़ों को खाओ बरतो।